ग्लोबल रिसेशन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। टेक टाइटन्स की तरफ से इस सेशन का इनाकाद किया गया है, जहां पे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से आए हुए आईटी एक्सपर्ट्स बात करेंगे और इस बात पे रोशनी डाली जाएगी कि पाकिस्तान को दरपेश किन मसाइल का सामना है आईटी सेक्टर में, और पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आईटी के एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम सबको जिस बेचैनी से, जिस शिद्दत से इंतज़ार है, सलीम गौरी साहब, a serial entrepreneur, a philanthropist, a techpreneur, a humanitarian, a contributor, someone who has started so many initiatives at so many levels जिनको लिस्ट कर देना मुमकिन ही नहीं है इस वक्त। इंस्पिरेशन फॉर millions and billions, putting Pakistan on the IT map of the whole world. Really looking forward to hearing from you, sir. The stage is totally yours. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज तशरीफ लाइए। Everyone put your hands together for Mr. Saleem Ghori sir. आता है, सडनली रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को। पूरी दुनिया में वॉर का क्लाउड इज देयर। चाइना में कोविड की वजह से सप्लाई चेन में इफेक्ट हो रही है। सो चाइना इज नॉट एबल टू सेंड यू द रॉ मटेरियल, सेंड यू द पार्ट, सो माय कस्टमर कैन कंटिन्यू टू सेल। नाउ सडनली एवरीथिंग हैज चेंज। सब कुछ चेंज हो गया एकदम। People cannot manufacture, so they can't sell. Udhar war get packed up, people are not buying. So what is recession? This is what recession is. Recession is when people are not able to buy and people are not willing to spend money because they're concerned कि growth वो नहीं है जो हम देख रहे थे. That's what definition is recession is. जो growth आप plan करते हैं वो negative में जा रही है, so that's a recession. So suddenly by 2022 what change? And एक दिन मुझे कॉल आती है. I got a call from my customer, okay, Mr. Boss of NetSol, come and see us. And it doesn't sound nice to me. The sound of the person calling me wasn't very nice. Because normally जब मेरी उनसे बात होती है तो they're very happy, they're always excited. हम अपना काम सही करें, हम टाइम पे जा रहे हैं. So I go travel to that country, sit with the customer, and they give me the bad news. Mr. NetSol, we have to stop the project. We have to stop the project because the growth we saw is not going to come. In fact, we are going negative. We are going back. I'm sorry, but we have to stop the project. And there is an exit clause. इस contract में clause भी है exit. ये customer किसी वक्त भी project रोक सकता है. Mr. Ghori, Mr. Boss, वो news देख के वापस आते क्या? And suddenly, we have lost a customer of a very big amount. ये तो हो गई bad news on recession. जो क्वेश्चन था कि रिसेशन का इम्पैक्ट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। और व्हाट अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स फ्यूचर? लेट्स सी कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री बेचती क्या है, व्हाट डू वी सेल, क्या उसका इम्पैक्ट रिसेशन पे होगा? इस जो व्हाटएवर वी डू, आई थिंक दैट विल क्लियर द माइंड्स ऑन हाउ रिसेशन विल इम्पैक्ट अस एंड आवर आईटी इंडस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, my company, we don't sell services, but we sell our own software. So we have our own product, we sell our software. Luckily for me, my customers are already committed because they run their business on my software. They have no way out. Even if it's a recession for them, even if their business is going down, they have to use the software to run their business. So companies like ours are protected because there's a commitment. They cannot run their software without my services, without my being there. So they make sure that we both are committed and we can look after their services. Yes, my revenue will decline because I will not get new contract, but at least we can survive.
we can survive the period of 1, 2, 3, 4 years. This session jab tak jayega, we can survive because alhamdulillah we have customers who are committed and we are running business with them. They need our services. They will continue to do with us. So that's a very important point for people who are sitting here and who are going to build companies. Look for the future in terms of your own IP right, your own products. If you're in services, at any given time, a customer can step back and stop your services. 2001 में the biggest crash of IT industry happened. It's called .com crash. .com in terms of internet आया था और everything had a .com. This is how websites were. And world was very excited. पूरी दुनिया बहुत excited थी और there were billions of dollars coming in new technology. And creating websites, creating e-commerce का बात हो रही थी उसमें, fiber की बात हो रही थी, speed, internet की speed की बात हो रही थी. So billions were invested into internet and e-commerce businesses and future ideas. Well, 2001 में that crashed. The full market crashed and everybody stopped spending money on that future technology which was internet and .com. We were there. NetSol was there. And NetSol was doing very well. This is 2000, 2001, we were doing well. We were growing. And we had multiple contracts for services with the customers around the world, in UK and Germany and in USA and Australia. We have people doing services. It's amazing how within a week, all my contracts of services were cancelled. All were, we got a call, thank you Mr. غوری, take your people back. We don't need your services because we're stopping all our technology investment. Our revenue in services went to zero. Luckily, at that time even we had a small product with multiple customers and NetSol survived that 3-year period from 2001 to 2004 because of the product we were servicing to our customers. आज टेक टाइटन्स पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम तकरीब का इनेकाद किया जिसमें पाकिस्तान में जो रिसेशन ग्लोबली आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको डिस्कस किया गया और इन तमाम मौज़ूआत के दोनों पहलुओं पे नज़र डाली गई कि इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा भी है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ पाबंदियों से पाकिस्तान जो है वो सस्टेनेबल या जो है अपनी ही इकॉनमी पे तवज्जो दे सकता है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हमारा सबसे पहला टैलेंट ग्रोथ है। पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, हमारी टैलेंट ग्रोथ की वजह से और हम 4th मोस्ट इंटेलिजेंट पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर नज़र में रखा जाए तो ये जो तमाम मौजू है ये इस बात को उजागर कर रहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी और हमें कभी भी इस चीज़ से जो है नाउमीद नहीं होना चाहिए कि कोई इंपोर्ट आनी बंद हो गई है। अभी भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं जिसमें से IT इंडस्ट्री है। आज का जो सेशन था टेक टाइटन्स एंड वेरी थैंकफुल टू टेक टाइटन्स दे अरेंज दिस सेशन and invited Mr. Slim غوری as chief guest speaker of this session, and the topic was the recession, how Pakistan can be part of that and how to help the Pakistan and to get out of the recession sessions जिस recession हमारे यहाँ चल रहा है उसमें टेक इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर सकती है। पाकिस्तान में टैलेंट है, यूथ का जो नंबर है अगर हम आफ्टर US यूथ का वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ यूथ, ठीक है, और हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और थ्रू टेक इंडस्ट्री वी कैन अर्न अ लॉट। हम जो बिलियंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं IMF को, द पाकिस्तान यूथ कम्युनिटी कैन अर्न दीज बिलियंस। फाउंडर एंड CEO टेक टाइटन्स मिस्टर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के सेशन के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा देखें, आज का जो हमारा सेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आपने देखा कि 150 प्लस के करीब जो है वो हमारे पास टेक HR प्रोफेशनल आए थे। आज की सेशन की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि सलीम गौरी साहब, जब आप IT में बात करते हैं, IT का नाम लेते हैं तो सलीम गौरी साहब का नाम 100
10% आता है, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आप जब मैंने ये टॉपिक मेरे ज़हन में आया कि ग्लोबल रिसेशन का जो इम्पैक्ट है कि पाकिस्तानी टेक सेक्टर में कौन होगा, तो मेरे ज़हन में आया कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा स्पीकर है जो कि इस पे बात कर सकता है। तो मेरे ज़हन में एक ही नाम आया और वो नाम था सलीम गौरी साहब का, CEO नेटसोल टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि उनसे बेहतर इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर सकता था। अच्छा, टेक टाइटन्स पाकिस्तान क्योंकि एक ज़बरदस्त टेक HR प्रोफेशनल्स का फोरम है और हम काफ़ी महीने से इसको रन कर रहे हैं, और हमारी यूनिकनेस ये है कि हम लोग हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिस पे लोग बात नहीं करते हैं। अगर आप देखें हमारे सेशंस, हमने रिवर्स मेंटोरिंग पे बात की, हमने मून लाइटिंग पे बात की, अभी इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का क्या था उस पे हमने बात की, और अभी आपने देखा कि ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान में किसी भी फोरम ने इस टॉपिक पे बात नहीं की। लोग करते हैं क्या, लोग नेटवर्किंग करते हैं, चाय पिलाते हैं, बिल्कुल करें, ये होना चाहिए, लेकिन जब लोग आते हैं तो वो सीखते क्या हैं, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू क्या ऐड होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से टेक टाइटन्स पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि वो ऐसे टॉपिक से बात कर रहा है कि जो कि डिफरेंट हैं और जो कि लोग सुनना चाहते हैं। मैंने सुबह बाकायदा फ़ोन करके लोगों से माजरत की है कि यार हमारे पास जो सिटिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, हम नहीं अकोमोडेट कर सकते। तो ये जो लोग हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई हमने अभी, वो कहते हैं ना, मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी हम और सेशंस जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पाइपलाइन में हैं, तो सलीम गौरी साहब से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ, तो बिल्कुल आपने नाराज़ नहीं होना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का जो इवेंट इन्होंने IT के नौजवान सारे बुलाए हुए थे लाहौर से, और बड़े अहम ही मौजू पे आज बात हुई कि जो रिसेशन आया है पिछले दिनों, इससे पाकिस्तान पे या दुनिया पे क्या असर पड़ा है, दुनिया के कारोबार पे। तो उस पर ये बात सामने आई, सारे मुकर्रर की तरफ से मैंने भी बात की उसमें, कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हमने थोड़ा देर कर दी, कि जो ही कोविड आया और बाकी दुनिया ने और हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी फौरी तौर पे वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और उसके ज़रिए से उनको पास रेवेन्यू आना शुरू हो गया। लेकिन लकीली चूँकि हम दुनिया की एक बड़ी यूथ हमारे मुल्क में है और टैलेंटेड यूथ है, तो उन्होंने खुद से बगैर किसी सरपरस्ती के दुनिया भर में तीसरे नंबर पे वो फ्रीलांसिंग में आ गए। तो ये इस बात की नवीद है कि अगले 5 से 7 सालों में हम दुनिया की बड़ी ताकत होंगे जो ऑनलाइन कमा रहे होंगे। आज का हमारा इवेंट काफ़ी अच्छा गया है, और मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि IT करने के बाद मार्केट में जॉब्स बहुत हैं। एज एन HR मैं यही कहूँगी, बट मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स का एटीट्यूड थोड़ा सा कम है टुवर्ड्स जॉब। बट ये है कि अगर हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो वो जॉब्स हमें मिल सकती हैं, जैसा कि आज सलीम गौरी साहब ने भी बताया। नो डाउट इन्फ्लेशन का टाइम है, बट ये है कि हम सब मिलकर इसे ओवरकम कर सकते हैं अगर हर बंदा अपनी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कुछ ऐड करता रहे तो, या हम सब की स्ट्रगल बहुत मैटर करती है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੈਕ ਟਾਈਟਨਸ ਦੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਟੈਕ ਟਾਈਟਨਸ ਦੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ कि जेरे तरीके नाल कम करेंदे पैन, यकीनन जवानों को पीरों का उस्ताद कर इन मुतरादिफ है, और इन तरह के खूबसूरत प्रोग्राम थींदे रहन, और नौजवान को उन्हें दे अंदर जोश को, उन्हें दे अंदर जज्बे को, कम को उभारिया वने, और उन्हें को दौरे हाजिर दे जदीद तकाजे नाल हमा कीता वने। IT इंडस्ट्री पहले तो इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन अब IT इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हुई है, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो पार्ट है वो है यूथ का, क्योंकि जितनी भी यूथ है अब वो ज़्यादातर IT फील्ड्स के अंदर ही आ रही हैं। प्लस अगर हम बात करें डिजिटलाइजेशन की तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब की फील्ड में, और इसलिए जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मेरी यही एडवाइस होगी कि वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरह की साइट्स में आएँ और अपने बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें जिसमें अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, और आप इसी तरह की फील्ड्स में आगे बढ़ें। टेक टाइटन्स आज से 6 माह पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इस मैग्नीट्यूड तक कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे, और आज का जो सेशन था जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया में एक रिसेशन का सिलसिला चल रहा है, एक सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर हमने उन लोगों से सुना, उन लोगों की बातें सुनने का मौका मिला जिन लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे रोनुमास करवाया, तारुफ करवाया, एक नई हैसियत में लेके आए। और जैसा कि सलीम गौरी साहब ने फरमाया कि आज आने वाला दौर जो है वो IT का है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जितनी यहाँ की खेती ज़रखेज़ है, जितने लोग, जितना यहाँ का यूथ आने वाला टैलेंटेड है और सारा कुछ है, ये आगे यही यूथ है जो इसको कामयाब बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीन है और मैं बिग इमर्सिव में एज HR मैनेजर जॉब कर रही हूँ। और अभी वाला जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। सलीम गौरी साहब ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई। और बाकी कहना मैं ये चाहूँगी सबसे
कि इस वक्त जो दौर है वो सिर्फ आईटी का दौर है, और जो भी आगे फ्यूचर हमें बनाना है अपने बच्चों का भी और अपना भी, वो सारा आईटी की तरफ जो है वो हमारा वर्ल्ड जो है वो जाता जा रहा है और हमारा रुझान उसी तरफ अब होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बातों से फ़ायदा उठाना चाहिए और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे और मज़ीद सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच।